Hello everyone. Today we are going to discuss about class 12th unit 1 electrostatics and chapter 2 electric potential and capacitance. In the previous class we have discussed about chapter 1. So today we are going to discuss about chapter 2 electric potential and capacitance. What is electric potential? Potential determines the direction of charge, whether charge is flowing from higher potential to lower potential or lower potential to higher potential. See, it determines the direction of flow of charge. Okay, positive charge moves from higher potential to lower potential and negative charge moves from lower potential to higher potential. These are the conventions. We have a convention that positive charges move from higher potential to lower potential. What is higher potential? Let us assume a battery. In a battery there are positive end and negative ends. Okay, so positive end is called higher potential and negative end is called lower potential. The positive charges move from higher potential to lower potential and negative charges move from lower potential to higher potential. Okay, next we will discuss about what is the definition of electric potential and how does it works. Electric potential, we denote electric potential as V, means the symbol of electric potential is V. So what will be the definition of electric potential? It is the work done to bring a unit positive charge from infinity to an electric field. Okay, so it is the work done to bring a unit positive charge from infinity to a point inside electric field. Okay, we have discussed about electric field in chapter 1. What is electric field? The space around a charge is called electric field. Okay, so let us draw a diagram. Let us assume that here is a charge Q. Okay, and this is the line of action. Okay, let us say this is the electric field. Okay, we have taken a point here exactly on the border of the electric field. Let us assume there is a charge, a point charge Q0 at infinity. Okay, so the distance of charge from this point is infinity. We have to do some work to bring the point charge inside the electric field. Okay, so what is potential? Potential is the work done to bring a unit positive charge from infinity to a point inside electric field. Okay, यहाँ पे जितना वर्क डन होगा इस चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाने के लिए वही हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा. ठीक है, एक चार्ज मान लो कि इन्फिनिटी डिस्टेंस में है और एक चार्ज है जिसका कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्योंकि चार्ज के चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड तो होता ही है. ठीक है, तो एक पॉइंट चार्ज जो कि इन्फिनिटी में है उसको एक इलेक्ट्रिक फील्ड तक लाने के लिए जितना हमारा वर्क डन होगा उसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. ओके, सो व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? वी डिनोट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एज V. ओके, सो V equal to work done to bring a unit positive charge, that means work done upon the unit positive charge. Okay, so potential equal to work done to bring a unit positive charge, that means work done upon charge Q0. What will be its SI unit?
what will be the SI unit? Potential V equal to work done by charge. So we know that the unit of work is joule, okay, and unit of charge is coulomb. So its SI unit will be joule per coulomb, or there is a unit called volt. It is also denoted by V. Okay. So unit of potential is volt or joule per coulomb, but better we should write volt. Okay. Then we will discuss about potential difference. Electric potential difference also denoted by V. Electric potential is denoted by V and electric potential difference is also denoted by V. So what is electric potential difference? Let us assume there is a charge here. Okay. On the axial line you have taken 2 points. Let us say this point is called A and this point is B. Okay. What is the formula of potential? Work done upon charge. Okay. And potential depends upon the distance. Okay. Potential depends upon distance. If the distance is larger, then potential is low, and if distance is smaller, then the potential will be higher. Okay. So if there is a charge on point A, okay, we have to bring this charge to B. Okay. If we will see the distance Q from A, let this will be RA and Q to B is RB. Okay. The potential for B is VB and potential for A is VA. Okay. यहाँ पे एक चार्ज है, चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर और एक चार्ज लाएंगे तो पोटेंशियल आएगा. ठीक है. डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा पोटेंशियल उतना कम होगा. दैट मीन्स पॉइंट ए इज लोअर पोटेंशियल. डिस्टेंस जितना कम होगा पोटेंशियल उतना ज्यादा होगा. दैट मीन्स पॉइंट बी इज हायर पोटेंशियल. तो चार्ज को लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल लाने के लिए जितना वर्क डन करना पड़ेगा वही है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस. ओके. इसका डेफिनेशन क्या होगा? इट इज द वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज from lower potential to higher potential. Okay. It is the work done to bring a unit positive charge from lower potential to higher potential. Okay. So we have placed a unit positive charge on point A, which was lower potential, and we have to bring the charge to point B, which is higher potential. So if we will move the charge from point A to point B, okay, we have to do some work. That work done from lower potential to higher potential is called potential difference. Okay. And what will be its formula? Let us say potential difference is V. Okay. Potential difference V is higher potential minus lower potential. Which is higher potential? VB is higher potential minus VA is lower potential. So potential difference is V equal to VB minus VA. Okay. Its SI unit is same as potential, volt. Okay. Its SI unit is also volt. Now we will discuss about electric potential due to a point charge. What will the potential
due to a point charge. Okay, this is a long question. Okay, for this we have to draw a diagram. Let us say there is a point charge q. Okay, we should determine a point on axial line at a distance r from the charge q. Okay, this is our axial line. I am considering a point P here, which is at a distance r from the charge. Okay, what is electric potential? We have discussed now. Electric potential is the work done to bring a unit positive charge from infinity to that point inside the electric field. Let us say this is the infinite point where the point charge is at infinite point. We have to bring the charge to point P. So we have to calculate the work done and the potential. Okay, so what we will do? We have to give this charge a small displacement. Okay, we have to give small displacement towards the point P. Okay, let us assume at any instant or any interval of time the distance between two charges is x. Okay, at any instant, at 10 second, 20 second, 30 second, 40 second, 50 second, at any instant, distance between charges is x. Okay, so if we will give the charge small displacement, total distance is x. What will be the small displacement? That will be dx. Okay, and if that charge comes towards the electric field, then that will experience a force, we know. Okay, from Coulomb's law. Okay, if two charges are separated by a distance, then they will experience a force. So if the charge comes towards the electric field, then the charge will experience some force. And what will be the direction of force? In this direction. Okay, this charge will give force to the charge q naught. Okay, अगर एक चार्ज यहाँ पे है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा. इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमने एक पॉइंट लिया है जहां पे हमें पोटेंशियल कैलकुलेट करना होता है. ठीक है, तो पोटेंशियल के लिए हम क्या करेंगे? एक चार्ज को इन्फिनिटी में प्लेस करेंगे. ठीक है, इन्फिनिटी में प्लेस करके हम क्या करेंगे? उसे स्मॉल डिस्प्लेसमेंट देंगे, छोटा छोटा डिस्प्लेसमेंट देके उसे आगे बढ़ाएंगे. ठीक है, इसीलिए डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन हो गया टुवर्ड्स चार्ज. बट इसका इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा ना, ये कुछ ना कुछ तो फोर्स देगा चार्ज क्यू नॉट को, क्योंकि ये इसकी तरफ आ रहा है अभी. ओके, तो फोर्स का डायरेक्शन हो जाएगा क्यू नॉट की तरफ. समझे? तो अब क्या करना है? थ्योरी पता है क्या लिखना है? जस्ट डायग्राम को देख के लिखना है. लेट अस एज्यूम अ चार्ज q which is at a distance r from point P. Okay, we assume a charge q naught at infinity which will be at a distance x from q. ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे? अगर चार्ज आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ तो क्या होगा? फोर्स एक्सपीरियंस करेगा. फोर्स के लिए हमारे पास कौन सा फॉर्मूला है? एक ही तो है, कूलम्ब्स लॉ. अप्लाई करते हैं. सो व्हाट विल द फोर्स? फोर्स F इक्वल टू 1/4 pi epsilon naught, that is the constant of Coulomb's force. Then two charge q and q naught divided by distance. कितना है? Coulomb's law में क्या था? डिस्टेंस किन के बीच था? दो चार्ज के बीच था. तो अभी चार्ज के बीच डिस्टेंस कितना है? x है, तो कितना होगा? x स्क्वायर होगा. ठीक है, अकॉर्डिंग टू Coulomb's law, force is directly proportional to product of magnitude of charges and inversely proportional to the square of distance between them. ठीक है, याद है? याद आ रहा है? पहली वीडियो में हुआ था. ठीक, तो ये हो गया हमारा फोर्स. उसके बाद क्या करेंगे? वर्क डन फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि पोटेंशियल में कौन सा फॉर्मूला है? वर्क डन अपॉन चार्ज. ठीक है, तो हमारा एम है वर्क डन फाइंड आउट करना. अगर यहां पे हम स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दे रहे हैं तो क्या होगा? स्मॉल वर्क डन ही होगा. ठीक है, सो फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट small work done dw. ठीक है,
स्मॉल वर्क डन हम डिनोट करेंगे dw। ये कितना होगा, वर्क डन का फॉर्मूला बताओ। वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो फोर्स क्या है, F इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या है, dx। डॉट प्रोडक्ट होगा क्योंकि वर्क डन क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर तो नहीं है। वेक्टर होता तो क्रॉस प्रोडक्ट कर लेते। ठीक है, ये एक स्केलर प्रोडक्ट है, तो F डॉट dx। उसके बाद क्या करेंगे, अगर डॉट प्रोडक्ट हमें उठाना है तो क्या मल्टीप्लाई करते हैं, डॉट प्रोडक्ट को अगर हम रिमूव करेंगे तो क्या मल्टीप्लाई करेंगे, लॉ क्या था, इफ डॉट प्रोडक्ट इज रिमूव्ड और इफ डॉट प्रोडक्ट इज वैनिश्ड देन वी हैव टू मल्टीप्लाई cos थीटा। ओके, सो क्या होगा, F dx cos थीटा। ठीक है, सो ये जो cos थीटा है या फिर ये जो थीटा है, ये क्या है, एंगल है। किसके बीच एंगल है, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच एंगल है। देखो फोर्स का डायरेक्शन कहां है, टुवर्ड्स q नॉट। डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या है, टुवर्ड्स q। दोनों ऑपोजिट साइड ऐसे हैं, तो उन दोनों के बीच एंगल कितना होगा, 180। ओके, सो ये हो जाएगा F dx cos 180 डिग्री। ठीक है, cos 180 डिग्री का वैल्यू कितना है, ये तो मैथ में पढ़े ही होंगे। cos 180 का वैल्यू है -1, तो ये हो जाएगा -F dx। ठीक है, तो जो स्मॉल वर्क डन था वो कितना आया, -F इंटू dx। ठीक है, इतना तो आ गया, ये हो गया स्मॉल वर्क डन। लेकिन चार्ज हमें कहां से, इन्फिनिटी से सीधा पॉइंट P तक लाना है। ओके, मतलब P पॉइंट में अगर लाओगे तो डिस्टेंस कितना होगा, R होगा। हमें सीधा लाना है R की तरफ, तो ये तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, स्मॉल वर्क डन हुआ। ठीक है, टोटल वर्क डन के लिए क्या करेंगे बताओ, टोटल वर्क डन के लिए क्या करें। अच्छा, और एक चीज है, ये जो वर्क डन है यहां पे फोर्स है। ठीक है, तो फोर्स का वैल्यू अभी लिखा था, तो क्या होगा, स्मॉल वर्क डन dw इक्वल टू माइनस ऑफ फोर्स था, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q नॉट बाय एक्स स्क्वायर इंटू dx। ये हो गया अभी हमारा स्मॉल वर्क डन। ठीक है, यहां से अब क्या करेंगे, टोटल वर्क डन कैलकुलेट करेंगे। टोटल वर्क डन के लिए क्या करना पड़ता है, तुम्हारे पास अगर स्मॉल वर्क डन है तो टोटल वर्क डन कैसे निकालोगे, इंटीग्रेशन करके। ठीक है, तो यहां पे क्या करेंगे, वी नो दैट टोटल वर्क डन इक्वल टू W। ठीक है, टोटल वर्क डन अगर हमारा W हुआ तो क्या करेंगे, W विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dW। जब वर्क डन स्टार्ट नहीं हुआ था तब कितना था, 0 से स्टार्ट हुआ होगा ना, तो लोअर जो लिमिट आएगा वो हो जाएगा 0। कहां तक वर्क डन करवाना है, W तक करवाना है, क्योंकि फाइनल वर्क डन कितना है, W। तो अपर लिमिट हो गया W। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ dW फ्रॉम 0 टू W, ऐसे पढ़ते हैं। ओके, उसके बाद क्या करें, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू W dW इक्वल टू, dW का वैल्यू हमारे पास है, पुट करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q नॉट बाई एक्स स्क्वायर इंटू dx। ठीक है, ये हो गया dW का वैल्यू हमने यहां पे पुट कर दिया। सो LHS इक्वल टू RHS हो गया, बट अभी यहां पे लिमिट पुट करना है। ठीक है, चार्ज था कहां पे, पहले इनिशियली इन्फिनिटी में था, तो लोअर लिमिट हो जाएगा इन्फिनिटी। लाना कहां तक है, पॉइंट P तक, तो पॉइंट P का डिस्टेंस Q से कितना है, R है। लेकिन हमने पहले बोला था क्या, कि जब भी हम चेक करेंगे दो चार्ज के अंदर डिस्टेंस, वो कितना होना चाहिए, x। ओके, वो बात अब भूल जाओ, अभी थोड़ा सा अलग होगा। पॉइंट P पे लाएंगे तो पॉइंट P का अलग डिस्टेंस है, तो R डिस्टेंस तक हमें लाना है। ठीक है, तो इन्फिनिटी टू R हो गया हमारा
लिमिट। इसके बाद क्या करना है, कैलकुलेट करेंगे। तुम जानते हो इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ वर्क ये कितना होगा, ये हो जाएगा W। लिमिट कैसे पुट करते हैं, ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट देकर 0 to W, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, देखो जितने भी कांस्टेंट हैं वो लिमिट से बाहर आ जाएंगे, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएंगे, ओके। जो भी वेरिएबल होगा उसे ही रखेंगे। तो दिस विल बी इक्वल टू, एक काम करते हैं, देखो ये क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये है कूलम्स कांस्टेंट, ये हो गया कांस्टेंट। अगर दो चार्ज हैं तो इनका वैल्यू तो हमें पता होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आ रहा है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का भी वैल्यू हमें पता होगा, दैट मीन्स चार्ज का वैल्यू भी पता है हमें। तो चार्ज भी हो गया कांस्टेंट, बाकी बचा 1/x² इंटू dx, इसका हमें पता नहीं। x का हमने क्या लिया था, x है डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस एट एनी इंस्टेंट, कोई भी इंस्टेंट हो, चार्ज तो आगे आ रहा है, तो x का वैल्यू हमें पता नहीं है, कैलकुलेट तो वही करना है x का वैल्यू, ठीक है। तो क्या करेंगे, कांस्टेंट को बाहर लाओ, -q0/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जितना भी कांस्टेंट था बाहर ला दिया। फिर इंटीग्रेशन डालो, उसके साथ लिमिट, इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू r कितना है 1/x² इंटू dx, ठीक है। जो था उसे ही हमने लिख दिया। उसके बाद क्या करेंगे, वर्क डन में लिमिट पुट करेंगे। लिमिट पुट करने के लिए फॉर्मूला क्या है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये हो जाएगा W माइनस 0। W की जगह ये वाला W पुट किए, फिर से W की जगह ये वाला 0 पुट किए, तो अपर लिमिट माइनस हो गया लोअर लिमिट, दैट इज इक्वल टू -q0/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ये 1/x² को हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू r, ये जो 1/x² है इसका वैल्यू हम कैसे लिख सकते हैं, x⁻² dx होगा, ठीक है, x⁻² dx। अब क्या होगा, देखो W - 0 क्या है, W है, कांस्टेंट को कांस्टेंट लिख लो, q0/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अभी इंटीग्रेशन में ये वाला एक फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन x⁻n dx कितना है, देखो इंटीग्रेशन x⁻n dx, इसका फॉर्मूला है x⁻n+1 डिवाइडेड बाय n+1, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, x⁻n+1 बाय n+1। तो यहाँ पे x⁻−2 है, तो n का वैल्यू कितना है, -2 है। अगर फॉर्मूला पुट करेंगे तो कितना होगा, x⁻−2+1 बाय -2+1, ठीक है। लिमिट क्या है, इन्फिनिटी टू r, तो लिमिट पुट कर देते हैं इन्फिनिटी टू r, ओके। उसके बाद क्या करना है, बस कैलकुलेट कर दो, -q0/4 पाई एप्सिलॉन नॉट x⁻−2+1, दैट इज x⁻−1 डिवाइडेड बाय -2+1, दैट इज -1, लिमिट रखो उधर x इन्फिनिटी टू r, ठीक है। देखो लिमिट के अंदर एक -1 डिवाइड हुआ है, कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो अभी ये लिमिट को पहले बाहर निकालेंगे। देखो वर्क डन कितना होगा, W इक्वल टू माइनस इंटू -1, ये हो गया प्लस, तो ये कितना हो जाएगा, q0/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक। ये कितना है, x⁻−1 है, 1/x फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि 1/x² अगर x⁻−2 हो जाएगा तो x⁻−1 1/x हो सकता है, सो इसको हम लिखेंगे 1/x, लिमिट पुट करेंगे फ्रॉम इन्फिनिटी टू r, ठीक है। फिर क्या करना है, वेरिएबल की जगह इन्फिनिटी और r का वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। सो q0/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, x की जगह पहले डालेंगे अपर लिमिट, माइनस x की जगह फिर से डालेंगे लोअर लिमिट, ठीक है। तो ये कितना होगा, 1/r माइनस 1/∞, लिमिट पुट हो गया, फिर से लिमिट मत लिखना, ठीक है। लिमिट पुट हो गया, यहां पे खत्म।
वी नो दैट 1 बाई इन्फिनिटी इज 0, ठीक है, तो इसका वैल्यू तो हो गया 0, तो वर्क डन हमारा कितना आएगा, W इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ओके, Q नॉट बाई R, ठीक। ये तो आ गया वर्क डन। हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। पोटेंशियल का वैल्यू निकालना है। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है, V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू नॉट। जो भी पॉइंट चार्ज तुमने लिया हुआ है उसी को डिवाइड करना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्यू नॉट ही होगा, उसे ही डिवाइड करना है। मान लो ये क्यू लिए, वो Q1 लिए, तो W बाई Q1 होगा। जो चार्ज तुमने इन्फिनिटी से लाया है उस पॉइंट तक, और जिस चार्ज पे तुमने वर्क डन किया है उसी चार्ज को ही डिवाइड करना है, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्यू नॉट ही लिया है तो मैं क्यू नॉट को ही डिवाइड करूंगा। सो अभी पोटेंशियल का फॉर्मूला लिखते हैं। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या था बताओ, पोटेंशियल V इक्वल टू डब्ल्यू बाय क्यू नॉट था। ये वाला चार्ज मैंने इन्फिनिटी से लाया था, अभी भी यहां से क्यू नॉट को ही इन्फिनिटी से ला रहा हूं पॉइंट के अंदर। वर्क डन कितना है, 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बाई आर, ठीक है। तो डाल देते हैं W का वैल्यू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बाई आर, ठीक है। फिर क्या करेंगे, होल डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। यहाँ पे क्यू नॉट डिवाइड हुआ है तो डिवाइड कर दिया मैंने, ठीक। तो ये क्यू नॉट एंड ये क्यू नॉट कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला कितना आएगा, 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर। ये हो गया पोटेंशियल का फॉर्मूला। यूनिट तो सेम है, जानते हो यूनिट तो पोटेंशियल का क्या होगा, वोल्ट ही होगा, ठीक। तो ये है हमारा पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, ठीक है। एक पॉइंट चार्ज के लिए पोटेंशियल कितना होगा, ओके। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, ओके। व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस? इट इज द वर्क डन to take a unit positive charge from lower potential to higher potential, okay. Let us take a single charge, a point charge, let us say Q, okay, and in the axial line we will take 2 points. So we will take a point charge Q, then on the axial line we are taking 2 points, point A and point B, okay. From charge, the distance of point A, let us say this is RA, okay. From charge, the distance of point B will be RB, okay. In the previous question, we have discussed about a charge was placed in infinity and we have taken the charge to the electric field, okay. Now we'll bring this charge here, let us say Q naught, okay. At any instant or any interval of time, the distance between the charges, that means Q and Q naught, will be x, okay. If this charge is inside electric field, then it will experience some force, okay, due to this charge, and the direction of force will be like this, okay. And we know potential difference is to take a unit positive charge from lower potential to higher potential. Here lower potential is point B and higher potential is A, because potential depends upon distance, okay. So we have to move the point charge from point B to point A. Let us give it a small displacement, okay. Let us give it small displacement dx, okay. So if we are giving this charge a displacement, then work will be done, okay. We have to find the work done. First we have to find how much amount of force is there, okay. So
force will be, according to Coulomb's law, force is directly proportional to the product of magnitude of charges and inversely proportional to the square of distance between the charges. Okay, so force equal to 1 by 4 pi epsilon naught product of magnitude of charges upon distance between charges, that is x. So x square. Clear? Now if we are giving this charge small displacement, then small work done. Okay, small work is done here. So let small work done is dw. Okay, and dw equal to, what is the formula of work done? Force into displacement. Okay, so small work done equal to force into small displacement. Okay, or we can say f dot dx. If we will remove this dot product, we will get f dx cos theta. Okay, and what is the value of theta here? Force is acting this side and displacement is opposite to force. That means angle between force and displacement is 180 degree. Okay, so f dx cos 180 degree. Okay, what is the value of cos 180? Cos 180 is -1. Okay, so this will be minus f dx. Okay, but we know the value of force, so putting the value of force in this term, we will get minus 1 by 4 pi epsilon naught q naught by x square into dx. This is small work done. Okay, but we have to calculate the total work done because we want to push this charge from point B to point A. Okay, so if we want to calculate the net work done, then what we have to do? We have to integrate this term. Okay, so now let us integrate the term total work done. Let total work done is W. And what will the value of W? W is equal to integration of dW. So W equal to integration of dW. Okay, we know the value of small work done, dW. Okay, putting this value, we get integration of dW. What will be the limit? When work has started, so work done was 0. When work was completed, then work done will be W. So limit 0 to W. That is equal to, what is the value of dW? Integration minus 1 by 4 pi epsilon naught q naught by x square into dx. Okay, what will be the limit of this term? From where we are pushing this charge? From lower potential to higher potential. Means the distance of lower potential is RB. That means the charge will be given displacement from point B to point A. Means the limit will be from RB to RA. Okay, हमें क्या करना है? ये चार्ज को पॉइंट B से पॉइंट A तक लेना है. तो चार्ज से जो पॉइंट चार्ज हमारा था, वहां से पॉइंट बी का डिस्टेंस कितना है? आर बी है. पॉइंट चार्ज से ए का डिस्टेंस कितना है? आर ए है. तो हमें चार्ज को, ये जो पॉइंट चार्ज है, इसको बी पॉइंट से ए पॉइंट तक लेना है. मीन्स आर बी से लेकर आर ए तक लेना है. ओके, सो इसीलिए हमारा लिमिट आर बी से आर ए तक हुआ. ओके, उसके बाद अगर इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा? देखो, integration of dw will be w and limit will be 0 to w. ओके, यहाँ पे जितने कांस्टेंट है उसे बाहर निकालो. इंटीग्रेशन के बाहर कांस्टेंट क्या है? 1 by 4 pi एप्सिलॉन नॉट, ये कूलम्स कांस्टेंट है.
क्यू नॉट, दो चार्ज है, ये भी कांस्टेंट है, तो माइनस के साथ निकालते हैं 1/4πε0, यहां पे लिख देते हैं क्यू नॉट बाय 4πε0 इंटीग्रेशन ऑफ RA टू RB 1/x² इंटू dx। ओके, तो ये जो 1/x² dx है, हम इसे क्या लिख सकते हैं, x⁻⁻² लिख सकते हैं। तो देखो यहां पे पहले लिमिट पुट करते हैं, यहां पे क्या होगा, ये एक वेरिएबल है, अपर लिमिट यहां पे पुट होगा माइनस लोअर लिमिट पुट होगा, तो क्या होगा w माइनस 0, ये वाला w इसमें पुट किया, फिर माइनस डाल के 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ओके, एंड दिस विल बी इक्वल टू माइनस क्यू नॉट बाय 4πε0, ओके, इंटीग्रेशन फ्रॉम RA टू RB x⁻⁻² dx। ओके, x⁻⁻², ये जो 1/x² था इसको हमने रिप्रेजेंट किया x⁻⁻² से। ओके, उसके बाद क्या करना है, सिंपल इंटीग्रेशन कर देना है। ठीक है, तो सिंपल इंटीग्रेशन करते हैं, ये जो w-0 है ये कितना होगा, ये डायरेक्टली हो जाएगा टोटल वर्क डन w। ओके, जो कांस्टेंट है उसे लिख देते हैं माइनस क्यू नॉट बाई 4πε0। ओके, ये एक फॉर्मूला है x⁻⁻² dx, पहले क्वेश्चन में भी वैसा ही हुआ था, क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ x⁻n dx। ओके, इसका वैल्यू क्या हुआ था, ये एक फॉर्मूला है, याद रखना, x⁻n+1 बाय n+1। ठीक है, ये फॉर्मूला है, इसको बस याद रखना। ओके, इसके बाद हम क्या करेंगे, x⁻⁻² में ये फॉर्मूला पुट करेंगे, ये क्या होगा, देखो x⁻n+1, n कितना है, -2 है, -2 + 1 डिवाइडेड बाय -2 + 1। ओके, लिमिट क्या पुट करेंगे, फ्रॉम RB टू RA, हमें पॉइंट B से पॉइंट A तक लेना है, तो RB टू RA। ओके, तो इसके बाद क्या करेंगे, माइनस क्यू नॉट बाय 4πε0 x⁻⁻² + 1 कितना होगा, x⁻⁻1 होगा, ये हो गया x⁻⁻1 डिवाइडेड बाय -2 + 1 कितना होगा, -1। लिमिट पुट करते हैं फ्रॉम RB टू RA। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, ये जो -1 है ये कांस्टेंट है, लिमिट के अंदर कांस्टेंट का कुछ काम नहीं है, तो पहले कांस्टेंट को यहां पे मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस इंटू -1, ये हो जाएगा प्लस, तो टर्म आ गया हमारा पॉजिटिव में। सो क्यू नॉट बाय 4πε0 इंटू ये जो x⁻⁻1 है, इसको मैं एक काम करता हूं 1/x फॉर्मेट में लिख देता हूं, चलेगा। ठीक है, क्योंकि x⁻⁻1 मीन्स 1/x। ओके, इसके बाद फिर से लिमिट पुट करते हैं फ्रॉम RB टू RA। ओके, उसके बाद क्या करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, क्यू नॉट बाय 4πε0, ये जो x के बदले अपर लिमिट पुट करेंगे, माइनस फिर से x के बदले लोअर लिमिट पुट करेंगे, तो ये कितना होगा, 1/RA माइनस 1/RB। ठीक है, अपर लिमिट यहां पे पुट हुआ, माइनस लोअर लिमिट यहां पे पुट हुआ। ठीक है, तो ये हमारा कितना आ गया, ये आ गया टोटल वर्क डन। लेकिन हमें निकालना क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक फॉर्मूला था, क्या था वो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V = वर्क डन डिवाइडेड बाय द पॉइंट चार्ज और W/Q0। ओके, तो अभी हमें W डिवाइडेड बाय Q0 करना है पोटेंशियल निकालने के लिए। ठीक है, तो पोटेंशियल निकालते हैं। सो we know that
V इक्वल टू W बाय क्यू नॉट। ठीक है, सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वर्क डन का वैल्यू पुट कर लेंगे, कितना होता है क्यू नॉट बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होल इंटू 1 बाई आर ए माइनस 1 बाई आर बी होल डिवाइडेड बाय क्यू नॉट, क्योंकि वर्क डन अपॉन क्यू नॉट है इधर, तो वर्क डन का वैल्यू पूरा पुट किया यहां से, डिवाइडेड बाय क्यू नॉट कर दिया है। तो इसका वैल्यू कितना आएगा, देखो क्यू नॉट और ये क्यू नॉट कैंसिल हो गया, तो पोटेंशियल इक्वल टू कितना आया, V इक्वल टू क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होल इंटू 1 बाई आर ए माइनस 1 बाई आर बी। ठीक है, सो पोटेंशियल डिफरेंट ड्यू टू 2 पॉइंट्स। सिंगल पॉइंट के लिए फॉर्मूला अलग था, अभी 2 पॉइंट के लिए मींस अगर तुम्हें चार्ज को लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल तक मूव करना है तो फॉर्मूला आएगा V इक्वल टू क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होल इंटू 1 बाई आर ए माइनस 1 बाई आर बी। पोटेंशियल है तो यूनिट वही आएगा वोल्ट। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियल। ओके, व्हाट इज सुपरपोजिशन? The total electric potential at a point due to number of charges is equal to sum of individual potentials. Okay, if there are number of charges, potential comes due to charges. Okay, so the number of potential at a point will be the sum of individual potentials. Okay, superposition principle means if there are number of charges, so potential arises due to charges, so superposition principle is equal to sum of individual potentials. Okay, next, equipotential surface. What is equipotential surface? The surface on which potential is same at all points is called equipotential surface. If we take a surface, if potential is same across all the points, then that is called equipotential surface. Okay, and potential difference on equipotential surface is 0. What is potential difference? VA minus VB, we have discussed. Okay, so if we will take a surface like this, okay, if here is a potential, here is a potential, okay, let us say this potential is V, this potential is V. ओके, अगर दो पोटेंशियल सेम होंगे या फिर जितने भी पोटेंशियल इस सरफेस में होंगे सब सेम होंगे, तब जाके हम बोलेंगे ना ये है एक इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो अगर मैं इस पोटेंशियल से इस पोटेंशियल को सब्ट्रैक्ट करता हूं तो कितना आएगा, 0 ही आएगा। इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस विल बी 0। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एनी पॉइंट। ठीक है, तो एक डाइपोल लेंगे किसी भी पॉइंट में, जैसे कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में किया था एक्सियल लाइन में और एक इक्वेटोरियल लाइन में। तो यहां पे हम पोटेंशियल का क्या करेंगे, एट एनी पॉइंट, कहीं पे भी एक पॉइंट लेंगे वहां पे हम पोटेंशियल निकालेंगे उस पॉइंट में। ठीक है, तो एक काम करते हैं, पहले क्या करते हैं, दो चार्ज कंसिडर करते हैं, एक है माइनस क्यू, ठीक है, दूसरा हम लेंगे प्लस क्यू। ठीक है, अगर डाइपोल ले रहे हैं तो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन कितना होगा, 2l होगा। मिनिमम डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन कितना है, 2l है। ठीक है, फिर क्या करेंगे, सेंटर ऑफ डाइपोल लेंगे O। ठीक है, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा l, ये हो जाएगा l। ओके, मैं एक पॉइंट कंसिडर करता हूं, एट एनी पॉइंट बोला था, यहां पे लूंगा तो इक्वेटोरियल हो जाएगा, इस लाइन में लूंगा तो एक्सियल हो जाएगा। तो एट एनी पॉइंट, मान लो यहां पे एक पॉइंट हम चूज करते हैं, पॉइंट P। ओके, सो इस ये जो पॉइंट है इसको पॉइंट A दे देंगे, ओके, और इसको पॉइंट B नेम कर देंगे। ठीक है, तो यहां पे हमने क्या किया है, दो डाइपोल कंसिडर किया है, दो पोल है माइनस क्यू एंड प्लस क्यू, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है 2l। ओके, प्लस चार्ज को हमने एक पॉइंट में डिनोट किया है A और माइनस चार्ज को हमने एक पॉइंट से डिनोट किया है B।
तो एट एनी पॉइंट की बात कर रहे हैं डाइपोल में, ठीक है। अगर सीधा O के ऊपर लेंगे तो क्या होगा, इक्वेटोरियल लाइन हो जाएगा, ओके। अगर इस लाइन में लेंगे तो ये एक्सियल हो जाएगा, ओके। तो एक पॉइंट ऐसी जगह पे चूज करेंगे जहां पे ना इक्वेटोरियल हो ना एक्सियल हो, ठीक है। तो एक पॉइंट को हम यहां पे कंसिडर करते हैं, ठीक है। मान लेते हैं ये हमारा पॉइंट P, ठीक है। फिर A से P को ज्वाइन करो, ठीक। फिर B से पॉइंट P को ज्वाइन करो, ठीक है। अब क्या करेंगे, O से P का डिस्टेंस हमें गिवन होगा, O से P का डिस्टेंस है R। ये हर वक्त गिवन रहता है कि हम एक पॉइंट P चूज करेंगे, सेंटर ऑफ डाइपोल से P का डिस्टेंस है R। ये इलेक्ट्रिक फील्ड में भी हमने किया था, इलेक्ट्रिक डाइपोल, इक्वेटोरियल लाइन में भी किया था, एक्सियल में भी किया था, यहाँ पे भी सेम ही है, ठीक है। फिर क्या करना है, ये जो AOP ट्राइंगल फॉर्मेशन हो रहा है, ये वाला जो एंगल है ना, इसको हम थीटा कंसिडर करेंगे, ठीक है। इसको हम कंसिडर करेंगे एज थीटा। तो यहां पे हमें फाइंड आउट क्या करना है, पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। पोटेंशियल का फॉर्मूला पहले क्या था, डाइपोल में दो चार्ज लिए थे हमने ड्यू टू अ सिंगल पॉइंट, वहां पे क्या था, KQ/R आया था, ठीक है। तो यहां पे क्या करेंगे, पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे। पहले प्लस चार्ज का अगर पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे तो कितना आएगा, लिख दो, पोटेंशियल ड्यू टू प्लस Q, लेट अस से दैट इज V1। V1 का वैल्यू कितना होगा, हमने डिराइव किया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R, ठीक है। तो यहां पे क्या करेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, प्लस चार्ज लिया है तो Q होगा, ठीक है। बट वहां पे R क्या था, चार्ज और पॉइंट के अंदर डिस्टेंस था। बट यहां पे तो R क्या है, O और P के अंदर डिस्टेंस है। तो प्लस चार्ज से P पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना होगा, AP ही रख लेते थे, ठीक है। हमें पता नहीं डिस्टेंस कितना है, ओके, क्योंकि एट एनी पॉइंट हुआ है ना, पता नहीं चलेगा। राइट एंगल ट्रायंगल भी फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, या तो फिर हाइपोटेनियस निकाल लेते, बट ये राइट एंगल ट्रायंगल है ही नहीं, ठीक है। तो ये हो गया प्लस चार्ज के लिए। पोटेंशियल में क्या होता है, आपको साइन कन्वेंशन यूज करना पड़ता है। प्लस चार्ज के लिए प्लस होगा, माइनस चार्ज के लिए माइनस होगा। तो पोटेंशियल ड्यू टू माइनस Q, ये कितना होगा, लेट अस से V2 इक्वल टू नेगेटिव सिंबल देना पड़ेगा माइनस चार्ज के लिए, ठीक है। ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय डिस्टेंस कितना है, माइनस चार्ज से P तक, BP है, तो ये हो जाएगा BP, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, दो पोटेंशियल निकल गया। अभी अगर नेट पोटेंशियल निकालना है तो क्या करेंगे, नेट पोटेंशियल V इक्वल टू क्या होगा, नेट पोटेंशियल बोले तो क्या करते हैं, V1 प्लस V2, ठीक है। तो V इक्वल टू V1 प्लस V2 कर दिए। फिर वैल्यू पुट करना है, V1 का वैल्यू और V2 का वैल्यू पुट करो तो कितना आएगा, V इक्वल टू V1 का वैल्यू कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/AP, ठीक है। प्लस और यहाँ पे V2 है माइनस, तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, मैं डायरेक्टली पुट कर रहा हूँ, तो ये हो गया माइनस, ओके। यहाँ पे V2 का वैल्यू पुट करेंगे तो ये होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/BP। सो V का वैल्यू कितना हुआ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/AP। माइनस क्यों आया, यहाँ पे प्लस था लेकिन V2 है माइनस में, तो माइनस प्लस माइनस हो रहा है, तो माइनस पुट कर दिया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/BP, ओके। तो यहाँ पे कॉमन क्या जा रहा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड Q दोनों ही कॉमन है, ओके। सो यहाँ पे क्या करेंगे, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को कॉमन निकालेंगे। फर्स्ट टर्म में
अगर Q बाय 4πε0 को कॉमन निकालते हैं तो कितना रहता है 1/AP, ठीक है, माइनस इस टर्म में कितना रहेगा 1/BP। ओके, इसको ले लेते हैं इक्वेशन 1, याद रखना है ये इक्वेशन को, ठीक है। फिर क्या करते हैं, AP और BP का तो डायरेक्टली वैल्यू नहीं है और हम निकाल भी नहीं सकते, तो क्या करते हैं, पॉइंट A से OP के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ठीक है, एक परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ करेंगे, छोटा सा ही परपेंडिकुलर रहेगा। डायग्राम में दिखाने के लिए डिस्टेंस इतना बड़ा है बट परपेंडिकुलर बहुत छोटा रहेगा, इन्फिनिटेसिमल स्मॉल। ओके, तो ये पॉइंट को हम दे देंगे पॉइंट C। ओके, पॉइंट A से OP के ऊपर एक परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया है। फिर पॉइंट B से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, लेकिन किसके ऊपर करेंगे, एक्सटेंडेड OP के ऊपर। क्या करते हैं, ये जो OP जो लाइन गया ना, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं और B पॉइंट से यहां पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं और ये पॉइंट को नाम देते हैं D। ओके, सो हमने दो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, OP के ऊपर AC, एक्सटेंडेड OP के ऊपर BD। ओके, और हमारे पास एंगल क्या है, AOP इज थीटा, ठीक है। हमें तो डायरेक्ट वैल्यू नहीं मिलने वाला, तो हम क्या करेंगे, ये जो परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया है अभी हम कंसिडर करेंगे AP इज सिमिलर टू CP, ओके, एंड BP इज सिमिलर टू DP। अगर इस लाइन ऑफ एक्शन में हम सब कर लिए, सब अगर रिजॉल्व हो गया इसी लाइन ऑफ एक्शन में, तो हमें सबका वैल्यू आराम से मिलेगा, इसलिए अभी हम इसको सिमिलर करेंगे। सो अभी हम क्या लिखेंगे कि हियर AP सिमिलर टू CP, हियर AP सिमिलर टू CP एंड BP सिमिलर टू DP। ओके, अगर सिमिलर है तो हम इक्वेशन 1 में भी वैल्यू चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब क्या लिखना है, पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन 1। ओके, अभी वैल्यू को पुट करेंगे तो कितना आएगा, V इक्वल टू Q/4πε0। ओके, 1/AP है, AP के बदले क्या डाल सकते हैं, CP, तो 1/CP, नेगेटिव सिंबल है, नेगेटिव दे दो, ठीक है। 1/BP है, BP के बदले क्या डाल सकते हैं, DP, तो 1/DP, ठीक है। ये आ गया हमारा नया वाला इक्वेशन। ओके, तो ये है, मान लो कि इसको इक्वेशन 2 है ये। ओके, अभी CP और DP का हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। CP और DP का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करें, क्योंकि एक्चुअल वैल्यू क्या होगा, CP इक्वल टू OP माइनस OC, ठीक है। CP का वैल्यू क्या आएगा, OP ये टोटल माइनस OC, इतना अगर माइनस कर देंगे तो ये वाला वैल्यू आ गया। ओके, और DP का वैल्यू कितना आएगा, OP, इसका वैल्यू है ना हमारे पास, R है, OP प्लस OD, ठीक है। अगर ये दोनों का वैल्यू हम निकाल देते हैं तो हो जाएगा, किसका वैल्यू निकालना पड़ेगा, OC एंड OD का, ठीक है। अभी देखो ये जो AOP एंगल है ये है थीटा, इसका ऑपोजिट एंगल ये वाला है, ठीक है। तो ये कितना होगा, ये भी थीटा होगा, ठीक है। ओके, तो अभी हम वैल्यू निकालेंगे OC का यूजिंग ये जो एंगल, ठीक है। तो अब क्या करना है, देखो यहां पे ये वाला एंगल है थीटा, तो हम अगर cos थीटा लेंगे, cos थीटा का वैल्यू क्या है, cos थीटा इक्वल टू B/H। ओके, तो यहां पे बेस क्या होगा, बेस हो जाएगा OC, देखो एंगल यहां पे है तो बेस होगा OC, और हाइपोटेनियस क्या होगा, AO हो जाएगा हाइपोटेनियस, ठीक है। तो हम लेते हैं इन ट्राइंगल AOC, ओके,
कॉस थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू कितना होगा, ओ सी जो कि बेस है बाई ओ ए, ठीक है, ओ सी बाई ओ ए। हमें किसका वैल्यू चाहिए, ओ सी का, यहां से निकल जाएगा ओ सी इक्वल टू कितना होगा, ओ ए कॉस थीटा, ठीक है। ओ ए का वैल्यू हमारे पास है, ओ ए इक्वल टू एल है, तो क्या करेंगे, ओ सी इक्वल टू एल कॉस थीटा निकलेगा। वैसे ही ये जो एंगल ये भी थीटा है, यहां पे जो हाइपोटेन्यूस है ये भी एल है, और हमें बेस निकालना है ओ डी, तो हम लिख सकते हैं, ऐसे ही निकाल सकते हैं। यहां पे भी अगर कॉस थीटा लेंगे तो ये कितना आएगा, ओ डी बाई बी ओ बी, ओके। और फिर क्या होगा, ओ डी इक्वल टू ओ बी कॉस थीटा, फिर वही एल कॉस थीटा ही आने वाला है। तो हम लिख सकते हैं सिमिलरली, ये सिमिलरली का सिंबल है, सिमिलरली ओ डी इक्वल टू एल कॉस थीटा। सो सिमिलरली, ये वाला सिमिलर का साइन है, ओके। सिमिलरली ओ डी इक्वल टू एल कॉस थीटा। तो हमें दोनों का वैल्यू मिल गया, ओ सी एंड ओ डी, बट हमें क्या निकालना है, सी पी एंड डी पी ना, ओके। तो अगर सी पी का वैल्यू निकालेंगे तो कितना होगा, सी पी इक्वल टू कितना होगा बताओ, यहां से यहां तक, ओके। हमारे पास है क्या, ओ पी का वैल्यू हमारे पास है, तो ओ पी माइनस ओ सी करने से सी पी निकल जाएगा, ओ पी माइनस ओ सी, ओके। ओ पी कितना है, ये है आर, माइनस ओ सी कितना है, एल कॉस थीटा, तो ये आ गया आर माइनस एल कॉस थीटा, ठीक है। फिर वैसे ही अगर मुझे डीपी का वैल्यू निकालना है तो डीपी कितना होगा, ओपी प्लस, क्योंकि वो एक्सटेंड हुआ है ना, तो प्लस ओ डी होगा, ठीक है। ओ डी का वैल्यू यहां पे है, ओपी क्या है, आर है, ओ डी क्या है, एल कॉस थीटा, ठीक है। अभी ये जो दो वैल्यू आए हैं सीपी और डीपी का, इसको अभी इक्वेशन 2 में हम पुट करेंगे, ठीक है। अभी इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो कितना होगा, इक्वेशन 2 क्या है, v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ओके, और q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होल इनटू 1/cp माइनस 1/dp था, ठीक है। यही तो था ना इक्वेशन 2, ओके। तो अभी cp के बदले cp का वैल्यू और dp के बदले dp का वैल्यू पुट करेंगे, तो q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, होल इनटू 1/cp का वैल्यू कितना है बताओ, cp का वैल्यू r माइनस एल कॉस थीटा, ये हो गया r माइनस एल कॉस थीटा, माइनस माइनस है dp, dp का वैल्यू है r प्लस एल कॉस थीटा, ठीक है। फिर क्या करेंगे, एलसीएम ले लो, q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ओके, होल इनटू एलसीएम कितना होगा, r माइनस एल कॉस थीटा इंटू आर प्लस एल कॉस थीटा। तो एक फॉर्मूला बन रहा है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी का वैल्यू है एल कॉस थीटा, बस एल स्क्वायर कॉस थीटा लिख के मत छोड़ देना, एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा होगा, ओके। अब क्या करेंगे, ऊपर न्यूमरेटर में क्या आएगा, एक तो आएगा आर प्लस एल कॉस थीटा, ठीक है, आर प्लस एल कॉस थीटा, माइनस है माइनस दे दो, और क्या आएगा, आर माइनस एल कॉस थीटा, ब्रैकेट शुरू करके दे दो, आर माइनस एल कॉस थीटा। फिर क्या करना है, q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, होल इनटू ये देखो r प्लस एल कॉस थीटा, अगर ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस आर प्लस एल कॉस थीटा होगा, ठीक है। तो लिख देते हैं r प्लस एल कॉस थीटा
माइनस आर प्लस एल कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाय जितना है आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहां पे आर एंड आर कैंसिल हो गया, एल कॉस थीटा प्लस एल कॉस थीटा ये हो गया 2l कॉस थीटा। ठीक है, तो डायरेक्टली वैल्यू पुट करते हैं, q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2l कॉस थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, हम निकाल रहे हैं पोटेंशियल, नेट पोटेंशियल। ठीक है, सो v इक्वल टू अभी कितना होगा देखो, q इंटू 2l, हमें पता है चार्ज इंटू स्मॉल डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है डाइपोल मोमेंट। ओके, तो इसको मैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख रहा हूं, ये कांस्टेंट है, q इंटू 2l हो जाएगा p। ठीक है, कॉस थीटा तो है, कॉस थीटा डाल दो, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये इतना पोटेंशियल आएगा। ठीक है, एक डाइपोल के लिए एट एनी पॉइंट में पोटेंशियल इतना आएगा। तो यहां पे बस साइड में लिख दो q इंटू 2l इक्वल टू p, बस याद रखने के लिए। ठीक है, ये डाइपोल मोमेंट है। हमारे पास एक और केस है जो कि आइडियल इलेक्ट्रिक डाइपोल का केस है, जो कि एक स्पेशल केस है। तो उसके लिए लिखेंगे तो क्या होगा, आइडियल इलेक्ट्रिक डाइपोल में कंडीशन क्या था, आइडियल इलेक्ट्रिक डाइपोल का कंडीशन था चार्ज टेंड्स टू इंफिनिटी एंड 2l टेंड्स टू 0। तो उसमें क्या था, उसका एक्चुअल कंडीशन क्या था, r इज वेरी मच ग्रेटर देन l। सो हम l को नेग्लेक्ट कर सकते हैं सिर्फ डिनोमिनेटर में। ओके, सो नेग्लेक्टिंग l, अगर l को इस इक्वेशन में हम नेग्लेक्ट करेंगे तो क्या होगा, ये पूरे टर्म को हमें नेग्लेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अगर l को ही नेग्लेक्ट कर रहे हैं तो इसके साथ जो भी है उसे भी नेग्लेक्ट करना पड़ेगा ना। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, कितना था हमारा, p कॉस थीटा डिवाइडेड बाय सिर्फ आर स्क्वायर होगा, माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा को हमने नेग्लेक्ट कर दिया। तो फॉर आइडियल केस पोटेंशियल इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर, इतना आएगा हमारा आइडियल कंडीशन में। ओके, अगर हम यही चीज एक्सियल लाइन एंड इक्वेटोरियल लाइन के लिए करेंगे तो एक्सियल लाइन में कंडीशन क्या है, एक्सियल लाइन में क्या होता है, अगर ये पॉइंट मान लो, ये पॉइंट को हमने इधर ला के रख दिया। ठीक है, तो एंगल कितना बन जाएगा, एंगल कितना होगा, एंगल हो जाएगा 0 डिग्री। अगर कॉस थीटा की जगह हम थीटा की जगह अगर 0 डिग्री पुट करेंगे तो कितना होगा, p बाई आर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और अगर इक्वेटोरियल लाइन में लेंगे तो कितना होता है, ये परपेंडिकुलर होता है तो 90 डिग्री, कॉस 90 0 है तो इक्वेटोरियल लाइन के लिए 0 आएगा। सो यहां से हमें पता चलेगा कि पोटेंशियल एक्सियल लाइन में कितना आने वाला है और इक्वेटोरियल लाइन में कितना आने वाला है। ये दो और एक स्पेशल केस होंगे, इसको बस लिख देंगे हम। ठीक है, केस 1 हम लेंगे फॉर एक्सियल लाइन। एक्सियल लाइन में क्या होगा, एंगल जो है वो होगा 0 डिग्री। ठीक है, अगर एंगल 0 डिग्री है तो पोटेंशियल कितना होगा, v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p कॉस थीटा की जगह क्या पुट करेंगे, cos 0 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ठीक है, cos 0 का वैल्यू कितना है, 1 है, तो पोटेंशियल कितना होगा, v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बाई आर स्क्वायर, वेर cos 0 इक्वल टू 1। ठीक है, ये हो गया केस 1। वैसे ही
अगर केस 2 देखेंगे इक्वेटोरियल लाइन के लिए, तो वो कितना होगा, केस 2 लेंगे फॉर इक्वेटोरियल लाइन। ठीक है, इक्वेटोरियल लाइन में एंगल कितना होता है, एग्जैक्टली परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, क्योंकि उसका नाम ही है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, तो यहां पे थीटा का वैल्यू होगा 90 डिग्री। तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos 90 बाई आर स्क्वायर। cos 90 का वैल्यू तो 0 है। ठीक है, तो यहां पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा, सीधा का सीधा 0, क्योंकि cos 90 इक्वल टू 0। अगर ये टर्म 0 हो गया, ठीक है, अगर ये वाला हो गया 0, तो 0 इंटू पी 0, 0 बाई आर स्क्वायर 0, 0 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 0, तो पोटेंशियल सीधा 0 आएगा। ठीक है, सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, ओके, एंड पोटेंशियल के बारे में अभी डिस्कस कर रहे थे। दोनों के बीच रिलेशन एस्टेब्लिश करना है। तो देखो, पहले क्या करेंगे, पॉइंट चार्ज तो लेना ही है। ठीक है, क्योंकि पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा और इसी की वजह से ही पोटेंशियल आएगा। तो एक काम करते हैं, ओके, एक चार्ज मैंने लिया। ठीक है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे होगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा बाहर की तरफ, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, फिर मैं इसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर 2 पॉइंट चूज करता हूं। ठीक है, एक होगा लोअर पोटेंशियल, एक होगा हायर पोटेंशियल। तो मान लो ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट ए है। ठीक है, ए होगा हायर पोटेंशियल, बी होगा लोअर पोटेंशियल। ओके, ए और बी के बीच जो डिस्टेंस है वो लेट अस से डेल्टा आर है। ठीक है, और दोनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है डेल्टा वी। ठीक है, फर्स्ट ईयर में सब लोगों ने पढ़ा होगा एरर के बारे में, जब भी डिफरेंस का बात आता है तब हम डेल्टा सिंबल यूज करते हैं। तो डेल्टा वी है डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल, डेल्टा आर है डिफरेंस ऑफ डिस्टेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा है। ठीक है, और हम क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट देंगे और एक चार्ज को। ठीक है, और एक चार्ज हम यहाँ पे प्लेस करेंगे। ठीक है, इसको डिस्प्लेसमेंट देंगे इस तरफ। ओके, या फिर ये जो चार्ज है फ्रॉम लोअर टू हायर पोटेंशियल जाएगा, वो कितना डिस्टेंस जाएगा, डेल्टा आर जाएगा इस डायरेक्शन में, लोअर से हायर तक। ठीक है, तो क्या करना है देखो, तो एक चार्ज लिया है हमने, पोटेंशियल डिफरेंस है डेल्टा वी एंड डिफरेंस ऑफ डिस्टेंस इज डेल्टा आर। पहला हमें क्या करना है, पोटेंशियल निकालना है डेल्टा वी। डेल्टा वी कितना होगा, पोटेंशियल क्या है, वर्क डन अपॉन पॉइंट चार्ज। ठीक है, तो एक काम करते हैं, ये पॉइंट चार्ज को हम मूव करेंगे पॉइंट बी से पॉइंट ए तक, तो वर्क डन तो होगा। ठीक है, कितना वर्क डन होगा, वर्क डन होगा पॉइंट बी से पॉइंट ए तक, तो उसे रिप्रेजेंट करेंगे डब्ल्यू बी ए, वर्क डन फ्रॉम पॉइंट बी टू पॉइंट ए अपॉन द पॉइंट चार्ज। ठीक है, क्योंकि पोटेंशियल का फॉर्मूला ही है वर्क डन अपॉन पॉइंट चार्ज। ओके, उसके बाद क्या करेंगे, वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, अगर चार्ज यहां पे है और एक पॉइंट चार्ज अगर यहां पे है, तो फोर्स किस डायरेक्शन में जाएगा, फोर्स होगा इस डायरेक्शन में, ये चार्ज उसके ऊपर एक फोर्स दे रहा होगा। ठीक है, तो वर्क डन को हम लिखते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, डॉट प्रोडक्ट रहेगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, डेल्टा आर होगा डिस्प्लेसमेंट, ये हो गया डेल्टा आर अपॉन चार्ज। ठीक है, बट वी नो दैट फोर्स अपॉन चार्ज एफ अपॉन क्यू नॉट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, फोर्स अपॉन चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड है, हमने पढ़ा था व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में पढ़ा था। हम अगर एक चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाएंगे तो वो जितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वही होगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है,
तो ये हो गया फोर्स अपॉन चार्ज। तो अभी ये जो F अपॉन Q है इसको हम E से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, डेल्टा V इक्वल टू F बाई Q इज E। डॉट प्रोडक्ट वैसे ही है किसके साथ, डेल्टा R के साथ, ठीक है। E डॉट डेल्टा R, अगर डॉट प्रोडक्ट उठाएंगे तो क्या होगा, E डेल्टा R कॉस थीटा होगा, ठीक है। अभी एंगल चेक करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड है आउटसाइड, ठीक है। और ये जो डेल्टा आर है डिस्प्लेसमेंट चार्ज का कहां से कहां तक हो रहा है, पॉइंट बी से पॉइंट ए तक, तो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट है, तो एंगल कितना होगा 180, ठीक है। तो E डेल्टा आर कॉस 180 पुट करेंगे, ठीक है। ये कितना होगा, ये हो जाएगा माइनस E डेल्टा आर, ठीक है। ये हो गया माइनस E डेल्टा आर। फिर क्या करेंगे, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के अंदर रिलेशन एस्टेब्लिश करना है ना, तो मैं क्या करता हूं, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लिखता हूं, E इक्वल टू कितना होगा, डेल V बाई माइनस डेल आर हो जाएगा, तो माइनस डेल V बाई डेल आर, ठीक है। फिर एक काम करते हैं, इफ डेल्टा आर टेंड्स टू जीरो, अगर डेल्टा आर बहुत छोटा हो गया और करीब करीब जीरो हो रहा है तो क्या करेंगे, लिमिट पुट कर देंगे, ठीक है। सो E इक्वल टू माइनस लिमिट डेल्टा आर टेंड्स टू जीरो, ओके, डेल्टा V बाई डेल्टा आर। अगर डेल्टा आर टेंड्स टू जीरो हो रहा है और लिमिट फंक्शन आ रहा है और हम यहां पे अगर लिमिट को हटाना चाहते हैं तो क्या होगा, डेरिवेटिव में आ जाएगा, ठीक है। तो ये कितना होगा, E इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पे ये जो डी वी बाई डी आर है इसे क्या बोलते हैं, ये तो पोटेंशियल है, ये तो डिस्टेंस है, पोटेंशियल बाई डिस्टेंस क्या हो जाएगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं इसे, ठीक है। सो यहां पे स्टेटमेंट क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है। ये जो dv बाई डी आर है ये क्या है, ये है पोटेंशियल ग्रेडियंट, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो रिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है। सो इन दिस वीडियो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट Unit 1 Chapter 2 Electric Potential and Capacitance. So far we have discussed what is potential difference, potential due to a point, potential difference between 2 points, okay, and potential due to a dipole at any point, superposition principle, okay, और ये जो पोटेंशियल ग्रेडियंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच जो रिलेशन, ओके, ये सब कुछ हमने पढ़ा है, ओके। ये फर्स्ट पार्ट है। तो वीडियो के सेकंड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कैपेसिटेंस के बारे में, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूरा खत्म हो गया, ओके। सेकंड पार्ट में हम कैपेसिटेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक थैंक यू एंड टेक केयर।